Subscribe to our channel, press the bell icon and never miss an update from Latestly. पर अगर प्रवीण तांबे कौन है अगर आप पूछोगे तो क्रिकेट वाले लोग शायद बता पाएंगे लेकिन एक आम आदमी शायद नहीं बता पाएगा। I mean, stories like these need to be told. मेरे को बहुत क्वेश्चंस आए थे जब मैं 41 में खेला था। I confess that I had tears in my eyes. तो इसकी जो एक इमेंस पॉजिटिविटी है ना वो लोगों के सामने आनी चाहिए। Bowling like him or playing like him was really tough, dude. ये स्टोरी देख के जो भी मुझे क्वेश्चंस करते थे उनको आंसर मिल जाएगा ऐसे लगता है। Well, even before watching the trailer of this one, I had one thought revolving around in my head, which was Rahul Dravid's speech that made the whole story change, that made the man visible, and the way he narrated it, the way he said it, that I am today not here to talk about a certain Tendulkar or Ganguly, I'm here to talk about Praveen Tambe. And what a memorable speech that really was, that set the tone for those who are not much into sports but could realize the significance of the man and his story. Praveen Tambe, thank you so much for joining us. Shreyas, thank you so much for joining us. And of course, the director, sir himself is with us. Fantastic trailer, fantastic story. And just before the interview, I confess that I had tears in my eyes. While making it, while understanding this story, while seeing your own story unfolding on the screen, ये सब बहुत ज़्यादा इमोशनल ग्राफ जो है ना मैं इसको समराइज नहीं कर पा रहा हूँ और ये जब दिल से इमोशंस निकलते हैं तब ऐसा होता है अदरवाइज योर इंट्रोडक्शन इज ऑलवेज क्रिस्प बट आई डिड नॉट वांट टू मेक इट दैट वन आई वांटेड इट टू बी वेरी रियलिस्टिक जस्ट लाइक योर फिल्म इज Thank you. सो प्लीज ईच वन ऑफ यू राइट फ्रॉम श्रेयस स्टार्ट करेंगे कि कैसे प्रोसेस की ये स्टोरी कि हियर इज अ मैन हियर इज अ लेजेंड हु स्टार्ट्स हिज जर्नी एट द एज ऑफ 41 वहाँ तक वो सस्टेन करता है वहाँ तक अपने आप पर भरोसा रखता है सारे ऑड्स को सर्कमस्टांसेस को चैलेंज करके वहाँ तक पहुँच जाता है ये प्रोसेस करना कितना डिफिकल्ट रहा या ईजी रहा Easy तो definitely नहीं था because he's a sports person and an emotional person and someone who's really connected with his people, all of them, whether it is his friends, his family, his guru, everybody. So I think the entire journey for me, of course, like I keep saying, was physically taxing, yes, because he made his debut at 41 and still keeps playing and he thinks age is just a number. I've started believing it now, but I'm 47 and he was bowling and I'm supposed to play from 20-year-old to like 41-year-old in the film. And bowling like him or playing like him was really tough, dude. But apart from that, I felt thanks to Jaiprad here, I got into the skin of this whole thing pretty fast. I don't know, it is some divine intervention that happens with you when you are so connected with that particular script and that character. And that person, when you've met him, when you've spoken with him, so there was some connect that happened. And I still remember there was one sequence, it's a very chota sequence between two brothers. Okay, so where Praveen's brother is actually going out of the country for some work, and for Praveen he's a very strong pillar of support, and suddenly Praveen is not able to take that. So we were doing that sequence and he was sitting there and he comes and he tries to talk and that's where it was supposed to end. Okay, but at that moment, when he got up, he came to me, I just felt like pulling him and hugging him. And I cried and he cried. And Jaiprad said, we'll retain this. So there were these moments which just happened spontaneously because you're so immersed in that role or that character that you feel, and there are varied places and where the whole journey is very dramatic and emotional and thrilling at the same time. But I guess not every film gives you this kind of satisfaction, So there are these special moments, special films and special people who make sure that the actor in you goes beyond what you have. Truly, absolutely. When you talk about this subject, we do not have to dwell much into the story because we know the story and you are portraying it in a different style, different way. I am more fascinated by the title itself. तो ये जो टाइटल की खासियत है, ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये कितने लोगों के जहन में ये क्वेश्चन मार्क खड़ा करेगा? अपने आप के ऊपर झांको कि देखो कि we have a person who with so much perseverance, so much dedication stood there. So उस मायने को अगर आप जहन में देखोगे तो ये टाइटल कितना सिग्निफिकेंट है? That's why it works on various levels. एक तो क्योंकि हमें प्रवीण तांबे की कहानी पता है पर वो पहले की नहीं पता है हमें
उसने डेब्यू किया 41 के एज में, उसके बाद की कहानी हमें पता है जी। उसके पहले जो 41 इयर्स थे तब क्या हुआ, तब वो क्या जर्नी रही, किन किन हालात में से गुजरा, क्या क्या कठिनाइयाँ आई, वो किस तरह से उससे उभरा, ये सब हमें पता नहीं है और ये उसकी कहानी है। जब मैं आप रास्ते पे जाके 4 लोगों को पूछा कि सचिन तेंदुलकर कौन है, तो ना पता है सचिन तेंदुलकर क्या, राहुल द्रविड़। पर अगर प्रवीण तांबे कौन है अगर आप पूछोगे तो क्रिकेट वाले लोग शायद बता पाएंगे, लेकिन एक आम आदमी शायद नहीं बता पाएगा। तो लेकिन ये कहानी है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ये कहानी उसे बताएगा कि कौन प्रवीण तांबे है और क्या तू भी प्रवीण तांबे है। सो आई थिंक दीज आर द वेरियस लेवल्स दैट द टाइटल वर्क्स अपॉन। जो कहानी है वो इतनी बड़ी है कि इट हैज़ टू बी टोल्ड, यू नो। ये कहानी इस फिल्म का हीरो है क्योंकि ये एक हीरो की कहानी है। सो आई थिंक दैट इज़ वेयर दिस कम्स फ्रॉम, यू नो। इट काइंड ऑफ it beckons the Praveen Tambe inside you. You know, all of us have this man inside us who has seen a dream, but who at some time is kind of, you know, taken a back seat जैसे जैसे उम्र गुजरती जाती है कि नहीं यार शायद नहीं होगा, शायद इस लाइफ में नहीं होगा। तो this is to make that Praveen Tambe in you arise again and propel himself to achieve that. प्रवीण तांबे, जब 41 के एज में आपने IPL में डेब्यू किया, वो जर्सी पहनना, वो फील करना कि मैं खेल रहा हूँ, जिस ड्रीम का इंतज़ार था, वहाँ से लेकर अभी मेरे ऊपर फिल्म बन रही है जो ये एजिज्म का पूरा जो नोशन है उसको खारिज कर देगी। ये इमोशन आपको अंदर से क्या फील करवाता है? एक्चुअली प्राउड भी फील कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लगता है, मेरे को बहुत क्वेश्चंस आए थे जब मैं 41 में खेला था, सब जगह से आ रहे थे, नॉट इवन स्पोर्ट्स के, जो स्पोर्ट्स रिलेटेड उस पर नहीं, कॉर्पोरेट लेवल से भी आ रहे थे कि 41 में कैसे। और ये सब क्वेश्चंस का मुझे लगता है बहुत खूबी तरह से एक्चुअली एक्टिंग करके शायद श्रेयस जी ने और जयप्रद सर ने, और ये स्टोरी को एक्चुअली बनाने के लिए जो हमारे सर है सुदीप तिवारी जी, वो लेके आए। तो मुझे लगता है कि ये सब जर्नी जो है, मुझे जो फीलिंग आ गई है, और मेरे बाद ये स्टोरी देख के जो भी मुझे क्वेश्चंस करते थे उनको आंसर मिल जाएगा ऐसे लगता है ये हिस्से। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग ने ये मूवी देखो कि ये सिर्फ एक पिक्चर ही नहीं है, कि हर एक स्पोर्ट्स पर्सन से लेके कॉर्पोरेट के जग में जो भी है काम कर रहे, जो बोलते हैं कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मुझे लगता है ये फिल्म देख के वो इंस्पायर हो जाएगी। 31 में अगर डेब्यू करते तो फिल्म नहीं बनती, इसीलिए खास है। यस, बोल सकते हो, क्योंकि मैं कभी एज के बारे में सोच नहीं रहा था, कभी भी नहीं सोचा था, अभी भी नहीं सोचता हूँ। कि मुझे लगता है जो भी चीज़ आपको चाहिए और वो आप दिलो जान से करोगे तो आपको वो देखने वाला है, तो वो मिल जाए। वाओ वाओ वाओ। एंड वी आर इन दिस एरा, वी आर इन दिस होल जोन जहाँ पर एज मैटर नहीं कर रहा है। ये नोशन बार बार हमें रीइटरेट हो रहा है। कोई भी आप फील्ड में जाओ, अगर आप में हुनर है तो शायद कहीं ना कहीं आपके करियर में डिप आ सकता है, लेकिन अगर आप अपने आप को इंस्पायर कर सकते हो, कीपिंग द एज वाला नोशन आउट ऑफ द इक्वेशन, तो आप पहुंच सकते हो। तो उस लिहाज से बोथ एज ए डायरेक्टर, बोथ एज एन एक्टर, कितना इंस्पायरिंग रहा परफॉर्म करना, क्योंकि ये स्टोरी मुझे दिखानी है, क्योंकि हर इंडिविजुअल में जो प्रवीण तांबे है उसको बाहर निकलना है, उसको बीकन करना है, जिस इन्होंने कहा। तो वो कितने जोरों से हुआ? नहीं बिल्कुल, मतलब आप ऐसी कहानी पे काम कर रहे हो, ऐसे बंदे की कहानी, एंड लाइक वी कीप सेइंग ना कि 41 की उम्र में डेब्यू क्रिकेट में कौन करता है जी। यू नो, जब हम बोलते हैं कि 32-34 में ऐसे होता था कि यार बस कर यार, अब बाकियों को खेलने दे, तो आई एम श्योर इनको हज़ारों लोगों ने बोला होगा कि अब बस कर यार, क्या मतलब पागलपन है तेरा ये कि मेरे को खेलना है और खेलना है वगैरह, कितना खेलेगा। बट दैट गाय हैड वन ड्रीम, वन फोकस, एंड ही केप्ट डूइंग इट, सिंपल एज दैट, बिकॉज ही एंजॉयड डूइंग इट, ही लव्ड डूइंग इट। तो सीधा मैसेज है यार, अगर आप किसी चीज़ से प्यार करते हो तो पूरी कायनात आपको उस चीज़ से मिलाने के पीछे लग जाती है, सिंपल। तो वो लगे रहो, फिर एज कुछ मैटर नहीं करता। आई मीन टुडे यू नो व्हेन यू लुक एट, फॉर एग्जांपल व्हेन यू लुक एट अनिल कपूर सर, I mean just look at him, look at his energy, you know. I mean yesterday someone showed me a picture of Kher Saab on his 67th birthday, you know. So you suddenly feel कि जो हम पहले फिल्मों में देखते थे कि हीरो हीरोइन के मम्मी पापा अगर कोई हो तो वो ऐसे बुजुर्ग से वगैरह होते थे, suddenly we've seen our parents also for that matter,
But today the whole scenario has changed. 40 is the new whatever 18, 20, 21 types, you know. So I feel if that change is happening, that needs to be reflected in whatever you do and on screen as well. ट्रेलर से एक बात तो जाहिर हो रही है कि ये फिल्म उसलिए नहीं है कि मुझे सांत्वना चाहिए, इस कैरेक्टर को सांत्वना चाहिए इसीलिए उसको हीरो बनाओ. ये इंस्पायर करने का तरीका ही कुछ और है. तो कहीं ना कहीं आपके जहन में था कि मैं ये दिखाऊंगा और इस पर ध्यान ज़्यादा नहीं भटकने दूंगा एज अ मेकर. हाँ नहीं, क्योंकि अगर आप उनकी कहानी सुने तो वो जो पहली चीज़ आपको करती है, आपको झकझोर के रख देती है कि कि यार ये क्या कहानी हुई, इज़ दिस पॉसिबल, इज़ दिस इवन इज़ दिस, ये कोई फेबल तो नहीं है. हम इसे मॉडर्न डे फेबल बोलते हैं कि ये परी कथा है एक तरह से. तो इसकी जो एक इमेंस पॉजिटिविटी है ना, वो लोगों के सामने आनी चाहिए. मैं कहता हूँ अभी भी कि हमें 41 के बाद की उनकी कहानी पता है, लेकिन उसके पहले का जो स्ट्रगल रहा, उसमें से जो नेगेटिविटी आई, उससे कभी बिटरनेस नहीं आया लाइफ में. जो फेलियर्स आए कि अगर मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है, अगर लोग मुझे कुछ भला बुरा कह रहे हैं, अगर मुझे लोगों से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अगर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा फेवर नहीं कर रहा है, तो क्या मुझ में बिटरनेस आएगी, तो क्या मुझ में कड़वाहट आएगी, या मैं उस सब से परे उठकर फिर भी उतना ही इनोसेंस, अपने जो एक बच्चे जैसा इनोसेंस है 16 साल का जो था, वो अभी भी इस उम्र में भी अभी भी एट 49 क्या मैं बरकरार रख सकूँगा. सो आई थिंक दिस इज़ अ ह्यूज मैसेज that has to come across, and that is I think what propelled all of us ahead. जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द इंटरव्यू आई वाज लाइक कि कैसे आप इंटरव्यू निभा रहे हो, इनको कहाँ तो और टूर्स नहीं करनी है. एंड आई गेट टू नो ही हैज़ टू एंटर द बायो बबल एज वेल. सो लुक एट द सिचुएशन वी आर टॉकिंग अबाउट. इट्स रियलिस्टिक एंड इंस्पायरिंग इवन. तो बिल्कुल ऐसे जहन में ख्याल नहीं आया कि एक कहीं ना कहीं ये ब्रेकिंग पॉइंट हो सकता है मेरे लिए. मेंटली मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, सर्कमस्टांसेस मेरे इर्द गिर्द ऐसे हैं कि वो आ जाएगा कहीं ना कहीं. ऐसा बिल्कुल नहीं आया. ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? आई डोंट नो वो एनर्जी मुझे कहाँ से आई है पता नहीं, बट ऐसे कभी भी नहीं लगा मुझे कि नहीं बस अभी बस करना चाहिए. क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं जब भी क्रिकेट फील्ड में एंटर करता हूँ तो आई गॉट सम डिफरेंट एनर्जी. मुझे कोई भी दिखता नहीं है बाहर. जैसे कि मैं मैचेस भी खेला, जब भी IPL में भी खेला हूँ, रणजी ट्रॉफी में, मुझे कोई दिखता नहीं था बाहर. कोई पब्लिक है आवाज़ दे रही है मुझको, या बात में कोई बोल रहा है. मुझे सिर्फ जब भी मैं ग्राउंड में रहता तो मेरे 10 प्लेयर है वो दिखते थे, बैट्समैन से और अंपायर. उनके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता था. तो मुझे वो पैशन था. आई डोंट नो कि मुझे अलग ही एनर्जी आती थी, और मैंने फिर वो एनर्जी लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ अभी भी. कि मुझे ऐसे कभी भी नहीं लगता है कि मुझे अभी भी जो भी बोलते हैं कि अरे 50 हो गया, तो बोलने के बाद लगता है, क्योंकि मुझे वो अभी भी एज के बारे में मैं कभी सोचता ही नहीं हूँ. अब छोड़ ही दो ना यार. 30, 40, 50 ये सब निकाल दो. राइट. माय लास्ट क्वेश्चन, कौन प्रवीण तांबे बीकन करेगा अपने अंदर के प्रवीण तांबे को, इंस्पायर करेगा अपने आप को, लेकिन आपके खुद के डोमेन में, श्रेयस फॉर यू इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, यू हैव एन ऐप नवरस, जहाँ पर इतने सारे रस आप धारण कर रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो. वहाँ पर भी एक्सप्लोरेशन का काम जारी है. एज अ फिल्म मेकर फॉर यू, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन फॉर यू, ये जो एजिज्म है वो कैसे हम पूरी तरह से खारिज कर सकते हैं, कितने लोगों को और इंस्पायर कर सकते हैं, और ये बता सकते हैं ये जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं, ये जो ब्रैकेट होते हैं, उसको निकाल देना चाहिए. एंड इन आवर ओन रिस्पेक्टिव डोमेन्स वी कैन प्रोपेल फर्दर, वी कैन स्प्रेड दिस पॉजिटिव एनर्जी. No, I think, I mean, stories like these need to be told, you know. So automatically that whole thing is changing as it is. Matlab, right from Bachchan Saab to Kapoor Saab, whatever, they're changing these things, you know. कह रहे नहीं 65, 67 तो क्या हुआ? Look at us, Bachchan Saab. I mean, look at him. You know, it is unbelievable the kind of energy, the kind of hunger, the kind of fire that he still has to perform, to do some roles, you know. So when these things start happening ज़्यादा बड़े स्केल पे, तो ऑटोमेटिकली ये एजिज्म का जो फैक्टर है, जो थोड़ा टाइपकास्ट होने वाला मामला है, वो ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा हटना शुरू हो गया. एंड प्लस द मिलेनियल्स टुडे, यू नो, लाइक आई कीप सेइंग, द होल डायनामिक्स ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हैव चेंज्ड. सो दे आर नॉट बॉदर्ड कि आप कहाँ काम कर रहे हो, आप कैसा काम कर रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट है. आपका एज क्या है, आप कहाँ से आए हो, हमें कोई लेना देना नहीं है. आप जो परफॉर्म कर रहे हो, सही परफॉर्म करो. That's it. So I think that is already changing, and probably in another 5 years time, at the rate things are changing, in another 5 years time you will feel कि हाँ यार, क्रिकेट में भी शायद नेशनल लेवल पे ऐसा होगा कि हाँ he is 40, अभी डेब्यू कर रहा है, कोई बात नहीं, very good, super.
You know, it'll probably become a very matter of fact kind of thing. तो इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि एज आर्टिस्ट ना आपका पुनर्जन्म होता रहता है हर एक प्रोजेक्ट के साथ, और जो आप लाइफ में जीते हो वो किसी तरह से आपके काम में आने लगता है। कई बार एक्टर्स या डायरेक्टर्स एट अ लेटर एज दे गेट ऑन टू अ डिफरेंट जर्नी ऑल टुगेदर, अ पर्सनल एंड इंटरनल, अ स्पिरिचुअल जर्नी, एंड दैट ब्रिंग्स आउट अ डिफरेंट लेवल ऑफ वर्क ऑल टुगेदर। True. ये बाहर बहुत लोगों के साथ हुआ है। आप उनको उनकी 30 की उम्र में या 40 की उम्र में जो फिल्में बनाई उन्होंने, और 60 और 65 और 80 की उम्र में जो फिल्में बनाई, ऐसा ही नहीं लगेगा उसी आदमी ने ये फिल्में बनाई, बिकॉज देन इट्स अ डिफरेंट क्वेस्ट ऑल टुगेदर। जिंदगी की एक अलग लेवल की समझ की निचोड़ के अभी उनके एक पर्सनालिटी में आ गई है जो उनके काम में झलकती है। सो आई थिंक वी आर ऑल केपेबल ऑफ इट। हम एवं ही अपने आप को कुछ उसमें डिप्राइव कर देते हैं कि इस उम्र में ये होना चाहिए, उस उम्र में वो होना चाहिए, कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं। ये सब बकवास है। जब तक आप अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखोगे तब तक वो बच्चा नए ख्वाब देखेगा और वो ख्वाब सच होने की ताकत देगा। Superb. मेरा एक ही है अभी, ये फिल्म देख के मुझे ऐसा लगता नहीं है कोई भी कोचेस अभी बोलेगा ये 35 का है। अभी ये सोचेगा ही इज गुड इनफ टू प्ले इफ इज फिट, Yeah. if he is asset for the team, Yes. and if he is performing, why can't he Why play can't in he? the team? Correct. So ये मैसेज तो जाएगा ज़रूर सबके लिए कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, इफ ही इज़ गुड इनफ टू प्ले लेट हिम प्ले। And who knows, from his academy, 50 plus only if you want to qualify for IPL. Who knows? and of course, after watching this film, I hope that con and question mark will be removed from our heads, right? बिल्कुल। Yeah? Thank you so हम much. प्रवीण तांबे, ये जवाब। There you go. Thank you so much for your time, and what a lovely project. Thank you. Thank you so much. Thanks.